نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم. ہلو اختر دیوبندی صاحب. جی ہلو. جی میں علی خان بات کر رہا ہوں شیخ. فرمائیے کہاں سے؟ میں ادھر ممبئی سے بات کر رہا ہوں. ممبئی سے جی. ہاں تو جیسے میں بہت سارے دیوبندیوں کے پاس میں فون لگا چکا ہوں اہل حدیثوں کے پاس. جی جی. تو ہم نے ان سے مطلب کہا ہے کہ شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ ذرا بتا دیں اور بریلوی کا ایک عمل شریعت کے خلاف ثابت کر دیں. تو جیسے انعام بھی اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے 1,00,000 روپیہ کہ 1,00,000 روپیہ دیں گے. حالانکہ بریلوی کے بارے میں کہتے ہیں یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ کام غلط ہے، وہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کا الزام لگا رہے ہیں، مگر آج تک ایک بھی عمل غلط ثابت نہیں کر پائے. تو آپ ثابت کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیے، میری ایسی کوئی بریلوی سے لڑائی یا چڑ یا کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی بریلوی مسلک کا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس کے کام اچھے ہیں، ہم اس کی سراہنا کرتے ہیں. اور اگر کوئی بریلوی مسلک کا ہے یا دیوبندی مسلک کا کوئی غلط کام اگر وہ کرتا ہے تو ہم اس کی نندا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، غلط کرتا ہے وہ. جی. اور ذاتی طور پہ ہمیں کسی سے بغض و عناد ہے نہیں. جی. اور ہم سرے سے اگر اٹھ کر کے کہہ دیں کہ نہیں ہم بریلوی مسلک کے سارے کام شریعت کے خلاف ہیں، ہم ثابت کر دیں گے تو ہم کیوں کہہ دیں؟ جی. بریلوی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، سب کچھ کرتے ہیں تو ہم ایسے کیسے کہہ دیں؟ ہاں تو اگر کوئی ایسا عمل وہ ہمارے سامنے کریں گے جو ہمیں لگے گا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اسی وقت اس پر ٹوک دیا جائے گا کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے. تو اور بات واضح ہو جائے گی. مجموعی طور پہ میں نہیں کہتا کہ ان کے سارے کام غلط ہیں. میں کیا کوئی نہیں کہے گا، جو کہے گا وہ غلط کہے گا. سارے کام نہیں میں بول رہا ہوں، صرف ایک کام غلط ثابت کر دیں. سارے کام کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کے علم میں ہو کہ بریلوی کا ایک عمل شریعت کے خلاف ہے بس وہی ثابت کر دیں. دیکھو اگر آپ عقائد کی بات کریں یا ان اعمال کی بات کریں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، میں عمل کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. عمل تو بھائی جو میرے سامنے جو آدمی جو کام کرے گا ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہی تو جانیں گے. بھائی سے ہمیں کیا معلوم کون بریلوی کیا عمل کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے تھوڑی گھوم رہے ہیں. سنیے، جیسے ہمارا ایک عمل ہے کہ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہاں، نیاز فاتحہ کرتے ہیں، قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. یہ سب عمل، میرے عمل کی بات کی ہے. قبروں پر اذان دیتے ہیں، تمام عمل ایسا ہے بریلوی کا. تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ شریعت کا اصول اور ضابطہ بتا دے، کوئی بھی دیوبندی ہو یا اہل حدیث. میں یہ کم سے کم 6-7 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں، کوئی آج تک بتایا نہیں. لیکن اکیلے میں بیٹھ کر ویڈیو بناتے ہیں کہ بریلوی کا یہ عمل غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، لیکن جب سامنے بات کرو تو کوئی نہیں بتا پاتا ہے. دیکھیے میں غلط تو اور صحیح کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جن کاموں کے آپ نے نام لیے ہیں یہ سارے اعمال بدعت تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو ثابت کر دیجئے پہلے، یہ شریعت کا اصول پہلے مجھے بتا دیں. یہ اعمال جو آپ نے گنوائے ہیں یہ بدعت ہیں. صرف ایک عمل میں آپ کا ایک کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں. جی. بوادر النوادر، جی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 746 غالباً ایسے کچھ ہے، یا 474 ایسے کچھ ہے. صفحہ نمبر میں بھول رہا ہوں. اس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو. یعنی جائز ہونے کے لیے وہ کام کافی ہے کہ جس کے بدلے میں جس کے اپوزٹ میں قرآن اور حدیث سے منع ہونے کی دلیل نہ ہو، وہ کام جائز ہے کہہ رہے ہیں. تو آپ کو جیسے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں قبروں پر چادر چڑھانا یا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی، تو آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل دینا پڑے گا کہ یہ نہیں چڑھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. ارے میرے بڑے بھائی یار، آپ بات ہی نہیں سمجھے میری. میں نے یہ کب کہا کہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے؟ اگر میں نے ناجائز کہا ہوتا تو آپ مجھ سے دلیل مانگتے کہ بھائی دلیل دو، کہاں لکھا ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا بدعت ہے. اور بدعت اس عمل کو تھوڑی کہتے ہیں، جو شراب پینا بدعت تھوڑی ہے، وہ تو ناجائز ہے. بدعت اس عمل کو تھوڑی کہتے ہیں کہ جس کے ناجائز ہونے کا صراحتاً قرآن حدیث میں ذکر ہے. تو بدعت کہتے کسے ہیں؟
हिदायत उसी अमल को कहते हैं जिस मुबाह और जायज काम को, यानी जिसके अदम जवाज का कहीं कोई जिक्र ना हो, जिसके हराम होने का कोई फतवा ना हो। जैसे चादर चढ़ाने का हराम होने का फतवा कहीं नहीं है। तो ये कहाँ, ये बिदात की तारीफ किसने बयान की हजरत? नहीं, अभी पूरी बात कहाँ हुई मेरी, आप मेरी पूरी बात तो सुने। ठीक है, बत सुनाइए। चादर चढ़ाने के हराम होने का कहीं पर कोई फतवा नहीं है, ठीक है। फूल चढ़ाने के हराम होने का फतवा कहीं पर नहीं है। तो अब जब हराम होने का फतवा नहीं है तो ये मुबाह हुआ, यही तो आप कहना चाहते हैं, ये जायज हुआ। और अगर हम इसको नाजायज कहते हैं तो हम इसके नाजायज होने को लिखा हुआ दिखाएं, कहीं साबित करें, दलील दें। नहीं है तो ये जायज हुआ। तो ऐसे जायज अम्र को इबादत समझ लेना और दीन का बहुत अहम हिस्सा समझ लेना, बना लेना अपनी तरफ से, यही तो बिदात है। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है मतलब? अब आप बता रहे हैं तो कहीं से पढ़कर आए होंगे ना आप। देखो ये हदीस से साबित है। मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। हाँ, तो ये हदीस तो है या इसको भी नहीं मानते? इसका मफहूम बताइए। मफहूम क्या, इसका तो लफ्जी तर्जुमा ही यही है कि जो हमारे दीन में जो चीज नहीं है उसको वो ईजाद करेगा अपनी तरफ से, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। हाँ, तो वो दीन में कौन सा काम नहीं है? भाई अगर है कहीं पर से चादर चढ़ाना तो आप साबित करें। अब हमारे लिए हम कह रहे हैं मुबाह है, हम सुन्नत थोड़ी ही कह रहे हैं। हम लोग उसको मुस्तहब अमल समझ रहे हैं, और मुस्तहब अमल के लिए दलील की जरूरत नहीं। अगर वो सहाबा से साबित ही हो जाएगा या कोई भी अमल हमारा, तो वो सुन्नत हो जाएगी। मुस्तहब अमल के लिए दलील की जरूरत नहीं है। नहीं, तो ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? ये खुद दलील में आपके ये अशरफ अली थानवी जो हमने कहा, उन्होंने इस्तेहबाब के लिए नहीं कहा। आप और सुन लीजिए जो इबारत पढ़ के सुनाई है, हाकिम अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3, उसमें हदीस शरीफ मौजूद है कि अगर मुसलमान मोमिन अगर किसी काम को अच्छा समझते हैं तो अल्लाह के नजदीक भी वो काम अच्छा है। मोमिन अगर किसी काम को अच्छा समझते हैं और करते हैं तो वो काम अल्लाह की नजर में भी अच्छा ही है। मोमिन समझेंगे ही उसी काम को अच्छा जो काम अल्लाह की नजर में अच्छा है। नहीं, मोमिन अगर किसी काम को समझ ले कि ये काम अच्छा है तो वो अल्लाह की नजर में भी अच्छा है। तो ये उसी सूरत में है कि जो पूरा इज्तिमाई काम हो। अब अगर 4 मोमिन किसी के कत्ल को अच्छा समझ लें तो कत्ल अच्छा थोड़ी हो जाएगा। 4 मोमिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में कहाँ मनाया जा रहा है यार? आप नहीं तो मनाया जा रहा। आप उस मुल्क का नाम लीजिए, मैं दलील देता हूँ। आप तो सिर्फ उस मुल्क का नाम सुनिए जहाँ बाज़ाब्ता तौर पर ये मनाया जाता है। 206 मुल्कों की दलील है हमारे पास, सीडी मौजूद है। 206 मुल्कों की दलील है। आप बताओ सऊदी अरब में कहाँ मनाया जाता है? मक्के मुकर्रमा में कौन मनाता है? कौन नहीं मनाया जा रहा है? मदीने मुनव्वरा में कब मनाया जाता है? अहले सुन्नत मनाते हैं जो वहाँ पर हैं। सऊदी अरब एक सिर्फ तुम्हारा मुल्क है जहाँ पर तुम्हारी हुकूमत है नजदियों की ना, और दूसरी जगह बताओ कहाँ नहीं मनाया जाता? तुर्की में नहीं मनाया जाता है, अफगानिस्तान में नहीं मनाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता है, बांग्लादेश में नहीं मनाया जाता है, श्रीलंका में नहीं मनाया जाता, कहाँ नहीं मनाया जाता है? देखो एक बात बताएं, हर मुल्क में मनाया जाता है। अब 4 मुसलमान नहीं हुए, फिर वही बात, 4 मुसलमान नहीं, बात आपकी सही। आपके मसलक से ताल्लुक रखने वाला या आपके नजरियात से मुतासिर आदमी कहीं पर भी गया है, वो कहीं रहता है तो वो मनाता है। कहाँ से गया? अकेले जहाँ भी रहता है। अरे यार, ईद मिलादुन नबी जो मनाते हैं वो 206 मुल्कों की मैं बता रहा हूँ। आप 206 मुल्कों की दिखा पाएंगे? और कुरान से तो आप दिखा पाएंगे, हदीस से आप दिखा पाएंगे, किसी अइम्मा के अक़वाल से आप दिखा पाएंगे कि मिलाद मनाना बिदात है? कुछ नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ आपका कौल ही सिर्फ तो है। मेरा कौल नहीं है, मेरे सामने ज़ाब्ता या फिर हाँ तो फिर पढ़ दीजिए, कहाँ लिखा वो ज़ाब्ता? भाई मैंने अभी हदीस पढ़ी, मन हादसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। सुनो, इसको आपने इस्तदलाल किया ना कि जो दीन में नहीं है, तो दीन में क्या काम नहीं है? यानी अच्छा काम है दीन में, बुरा काम नहीं है। जैसे हमने हदीस का हवाला दिया कि मोमिन अगर किसी काम को अच्छा समझता है तो अल्लाह की नज़र में भी वो अच्छा है, तो पता चला दीन में बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। मैंने बिल्कुल इनकार नहीं किया, अच्छा काम है, ठीक है।
लेकिन अगर इस काम को आप अच्छा काम कहते हैं हाँ तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त मेरे जहन में भी सवाल आएगा, आप उसका जवाब देंगे। बताइए, सवाल मैं ये जवाब देता हूँ आएगा, ना। कौन सा सवाल ये आएगा कि अगर वाकई ये अच्छा काम है और मोमिनीन इसको अच्छा काम समझते हैं, तो मोमिनीन की फहरिस्त में हम 1400 साल के बाद तो बहुत पीछे आते हैं, सहाबा इकराम और ताबई निजाम तो बहुत पहले आते हैं। तो उन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे जिस तरह आप लोग मनाते हैं, इस तरह उन्होंने क्यों नहीं मनाया था? उनसे भूल हो गई या वो नहीं समझ पाए? सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये उसूल ही नहीं है कि किसी काम को सहाबा ने या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो उसको करना नाजायज़ है, ये उसूल कहीं मौजूद ही नहीं है, और आप ये उसूल कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम मुस्तहब अमल के कायल हैं, आप सुन्नत की दलील मांग रहे हैं। जब सहाबा कर देंगे तो हम सुन्नत उसको मान लेंगे ना। अच्छा, वो तो सुन्नत मतलब हो जाएगी। ईद सहाबा अगर कर देंगे, सुनो, हालांकि सहाबा ने किया है लेकिन इस तरह से नहीं किया है जिस तरह से आज हम लोग कर रहे हैं, मगर जिक्र मुस्तफ़ा किया है विलादत पर। दूसरी बात, अगर ये जब साबित ही हो जाएगा तो सुन्नत हो जाएगी ना। अब तो इसके मुस्तहब अमल के कायल है, तो मुस्तहब की दलील मांगिए मुझसे, यही तो उसूल है। मतलब ईद मिलादुन नबी के सुन्नत होने के आप भी कायल नहीं हैं? कौन? आप। हम सुन्नत होने के कायल हैं, मगर इस तरह जिस तरह से आज हम लोग कर रहे हैं इस तरह से नहीं उन्होंने मनाया था। ये तो जो मिलाद मुस्तफ़ा जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जरूर सुन्नत है। नहीं, इस तरह करने के आप सुन्नत के कायल नहीं, मतलब ये सुन्नत अमल नहीं है। नहीं, तो जब सुन्नत अमल नहीं है तो अगर कोई नहीं मना रहा है तो फिर उसको गरेबान से पकड़े भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग कहाँ कहते हैं। अच्छा, मतलब वो आपकी नजरों में, अब सुनिए, आपकी नजरों में नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा है कि जो मिलादुन नबी नहीं मनाता है वो दीन से खारिज है। नहीं, आपके किसी आलिम ने कहीं पर नहीं लिखा। कह रहा हूँ, लेकिन तकरीरों में तो हर जगह ये बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये जो मिलाद नहीं मनाते हैं ये वहाबी हैं, ये वो तो एक हैं, पहचान बता रहे हैं, वो एक पहचान निशानी बता रहे हैं। जैसे मुनाफिकों की निशानी है झूठ बोलना, तो हदीस ने एक निशानी बताई, तो निशानी बताना कोई गलत नहीं है। वो तो निशानी बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं मुतलकन कि अगर कोई ईद मिलादुन नबी नहीं मनाएगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। अच्छा, तो जो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाएगा वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन उसकी मुखालिफत करने वाला जरूर निकल जाएगा। मुखालिफत करने वाला फिर क्यों निकल जाएगा? इसलिए निकल जाएगा, सुन लीजिए, सुनो, अरे मौलाना, किसी ऐसे अमल की मुखालिफत करना जो काम आप खुद कह रहे हो कि सहाबा इकराम से साबित नहीं, अगर साबित होता तो हम उसे सुन्नत मान लेते, तो ऐसे अमल की मुखालिफत करने वाला इस्लाम से कैसे निकल जाएगा? खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और दूसरी बात, अच्छा सुनो, यही जो हमने हदीस का हवाला दिया कि मोमिन अगर कोई काम अच्छा समझता, अगर वो करता है तो वो दुरुस्त है। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो कलम हम लोग ये पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब लेते हैं तो सुनने वाला और कहने वाला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। ये भी कौन सा अमल है? सुन्नत है। ये भी तो मुस्तहब ही है ना। नहीं, ये मुस्तहब नहीं है। साबित कीजिए किस सहाबा ने पढ़ा था। सहाबा ने नहीं, मैं आपको बताऊं, किसी ने नहीं पढ़ा है। साबित कर दीजिए किसी एक से। मैं साबित करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सामने जिसका नाम लिया जाए तो वो दरूद नहीं पढ़ेगा, अगर तो वो मरदूद। तो ये वाला दरूद कौन सा वाला दरूद? दरूद वाला नहीं, दरूद भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद है कि नहीं? कौन सा दरूद? कोई सा भी दरूद पढ़े, वो दरूद पढ़े आपका। कौन सा भी दरूद? ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कहाँ था? तो वही दरूद पढ़िए ना जिसको पढ़ने का हुक्म दिया गया। अपनी तरफ से नया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इजाद किया आपने? ये बिदात हो गया कि नहीं हो गया? बकौल आपके नहीं, उन्होंने दरूद कहा मुतलकन, दरूद के अल्फाज मुतय्यन नहीं किए। क्योंकि दरूद के अल्फाज हाजिर का सीगा इस्तेमाल होगा, जब हाजिर नहीं तो गायब का सीगा इस्तेमाल होगा। अब सुनो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अल्लाह के बेहतरीन दिनों को याद करो। ठीक है, तो बेहतरीन दिन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन दिन वो दिन है जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो बिल्कुल। अब हम याद कर रहे हैं उसको, ईद मिलादुन नबी मनाकर। तो जब याद कर रहे हैं तो इसमें तो कोई हुक्म नहीं दिया कि इस दिन मनाना, इस दिन नहीं मनाना। तो इसी तरह से आप ये इस्तदलाल कर रहे हैं
कि मतलब हाँ, कौन सा भी दलील पढ़ सकते हैं, तो इसी तरह से हम किसी भी शक्ल में इस ईद मिलादुन नबी मना सकते हैं। आप ही की बात से हमारी बात साबित हो गई। क्या साबित हो गया? याद करने में किसी को इख्तलाफ नहीं है। तज़कीर बिअय्यामिल्लाह में अच्छा, किसी को मतलब इख्तलाफ आपको नहीं। मिलाद अय्यामुल्लाह से नहीं, आप सुनिए, नहीं, अरे आपके याद करने के तरीके से हमें इख्तलाफ है। आप अच्छा, अपने मतलब ईद तरीके पर याद मिलादुन नबी करते हैं, कौन सा तरीका बताइए, आप अपने तरीके पर याद करते हैं। कौन सा आपका तरीका, उसमें गलत क्या है? अरे हमें उससे बहस नहीं, आप उसको आप देख गलत लीजिए, नहीं आपने मानते कहा हो, मत तरीका मानो। गलत है, तो तरीका गलत कैसे है वो साबित करिए ना, बताइए मुझे जरा, मैं भी जानूं। पहले तो आप ये वाज़ेह कर लीजिए कि याद करने के मामले में हम मुत्तफिक हैं। याद नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब सुनिए, लेकिन हम याद करते हैं जिस ढंग से, आप याद करते हैं दूसरे ढंग से। हमें वो ढंग पसंद नहीं जिस ढंग से आप याद करते आपको हैं। नहीं पसंद है तो वो कुरान से दलील दीजिए कि इस्लाम ने इसको नहीं पसंद किया है। आप पसंद अरे, करें या ना पसंद करें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो आप जिस काम को पसंद करते हैं, आप जिस काम शरीयत को, से, सुन लीजिए यार, आप कुरान सुनो और मेरी बात हदीस सुनो। से साबित करें कि ये तरीका जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। ये तरीका कुरान और हदीस से आप भी तो साबित नहीं कर सकते कि ये सही है जिस तरीके से आप करते हो। नहीं, हमारे लिए तो जायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काम तुम्हारे लिए हलाल है वो अल्लाह ताला ने बता दिया, और जो हराम है वो भी बता दिया। जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो काम तुम्हारे लिए जायज़ है। बिलफर्ज ये तरीका अगर जायज़ नहीं है तो लिखा नहीं है, साबित नहीं है, तो भी जायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नाजायज़ है, तो मुद्दई आप हैं, आप दलील दीजिए। मैंने ये नहीं कहा नाजायज है, लेकिन वो तरीका हमें पसंद नहीं। हुज्जत क्यों कर रहे हैं? हम हुज्जत कहाँ कर रहे हैं? हुज्जत तो आप कर रहे हैं। जायज़ मान गए आप ये तरीके को? आप नहीं, आप अपने तरीके पर याद करते हैं, हम अपने तरीके पर। तो हमारा वाला तरीका गलत है, आप भी तो साबित नहीं कर पाएंगे। सुन लीजिए, हम कहाँ एतराज करते हैं? आप तो करिए ना, जैसा आप कर सकते हैं वैसा करिए। हम कहाँ एतराज करते हैं? एतराज तो आपके मौलवी करते हैं, इलियास घुम्मन साहब। वैसा तो करते हैं। जलसे क्यों एतराज करते हैं? उन्हीं दिनों में करते हैं। तुम्हारे मिलाद मनाने पर, याद करने पर किसने एतराज किया? अरे मुसलसल एतराज करते हैं कि ये लोग हमारे तरीके से क्यों नहीं मना रहे हैं। हमारे तरीके तुम्हारे तरीके से क्यों मनाए, हम अपने तरीके से मनाए। कौन से हमारे आलिम ने कहा? मुसलसल स्टेजों से यही बोलना होती है आपके। झूठ बोलना नहीं बोल रहा हूँ भाई, हमारे किसी आलिम ने नहीं। तुम याद भी नहीं करोगे तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि तुम याद करो। नहीं, क्यों नहीं करते? मगर हम लोग अपने तरीके पर करते हैं, अपने तरीके पर। लेकिन हमारे किसी आलिम ने कहा कि हमें वो तरीका पसंद नहीं है कि जिस तरह से देवबंदी में याद करते हैं। किसने कहा? बरमला कहते हैं स्टेजों पर। काफी नहीं है, दलील दीजिए से। अरे आप अपने उलमा की तकरीरें बरमला कहते हैं कि ये वो लोग हैं, ये हमारे जुलूस में शामिल नहीं होते, ये फलां में शामिल। हाँ, तो हम अपने तरीके से करते हैं। हम क्यों तुम्हारे शामिल हो यार? कौन कहता है कि आप शामिल हो उसमें? आपके उलमा नहीं कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे उलमा नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं देवबंदियों से, बदमज़ाबों से दूर रहो। उनको तो भगाते हैं मस्जिदों से यार। आपको कहेंगे कि तुम आओ हमारे मजलिस में, कब कहेंगे? अब आप बात बदल रहे हो, मान नहीं रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? बदल रहे हो भाई। पहले कि ये तरीका गलत है, वो तरीके पर आप दलील दीजिए कि कैसे वो तरीका गलत है। भाई वो तरीका अगर आपकी नजरों में सही भी है तो भी तो आप सहाबा से वो तरीका साबित नहीं कर सके। तो जब नहीं कर सके करेंगे तो सुन्नत हो जाएगी ना। हम तो मुस्ताहिब के कायल हैं। ठीक है, तो हम अपने तरीके से जिस तरह मनाते हैं उस तरीके से। मुस्ताहिब के कायल हैं, मुस्ताहिब की दलील लीजिए। आप सुन्नत और फर्ज की दलील मांग रहे हैं। मैं सुन्नत और फर्ज की दलील नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं सहाबा से साबित कीजिए, तो सहाबा से साबित करेंगे तब तो वो सुन्नत हो जाएगी। सुनो, अगर आप इस पर बजिद हैं कि जिस तरीके पर हम लोग मनाते हैं उसी तरीके पर मनाओ, तो फिर आपको दलील देनी पड़ेगी। क्यों उसी तरीके पर मनाओ? कि तुम मनाओ यार, तुम्हें मनाने के लिए क्या जरूरत है? तुम मनाओ ही मत। ये तो जी अपने नसीब की बात है। हम तो कभी नहीं कहते कि देवबंदी जाए ईद मिलादुन नबी मनाएं। हालांकि तुम्हारे मौलवी लोग मना भी चुके हैं, हम लोग उस पर कोई एतराज नहीं करते हैं। ये बात यार आपकी हजम नहीं हो रही। आप जो ये कह रहे हो कि हम कभी नहीं कहते कि मनाएं, कभी नहीं कहेंगे। आपको देखिए, हमारी नज़र में जो नहीं है, कुरान और हदीस की नज़र में आपको कलमे की ज़रूरत है और अकीदा बदलने की ज़रूरत है। किस मामले में अकीदा बदले? क्योंकि आप लोग जो नहीं है वो मुसलमान नहीं है। कोई एक अकीदा तो बता दो कि भाई ये वाला सही नहीं, इसको बदलो, उसको बदल दे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। बताओ। जैसे औलिया अंबिया से जो मदद मांगते हैं उनको आप मुशरिक कहते हैं। इस बिना पर आप मुशरिक हैं। इस बिना पर हम मुशरिक हैं? हाँ, मुशरिक उसे कहते हैं जो शिरक करे। तो हम कहाँ शिरक कर रहे हैं जो हम मुशरिक? किसी को मुशरिक कहना भी शिरक है।
क्योंकि किसी को कुफ्र और मुशरिक, हाँ कुफ्र और शिर्क किसी को लौटता है। मुशरिक कहना शिरक नहीं है, किसी को मुशरिक कहना अगर वो मुशरिक ना हो तो कुफ्र है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्यों कौन कहा? अगर किसी को मुशरिक कहेंगे आप ऐसे आदमी को जो मुशरिक नहीं है, हाँ, तो आप गलत कर रहे हैं, आप कुफ्र कर रहे हैं। कहाँ लिखा है? भाई कुफ्र जिसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया जाए और वो उसका मुस्तहिक ना हो तो अब कुफ्र सुनो, का फतवा देने वाले सुनो, पर लौटता है। सुनो सुनो कुफ्र उसी पर लौटता है। सुनो यार, कुफ्र जो फतवा देगा, किसी को काफिर कहेगा तो कुफ्र का फतवा लगेगा, मुनाफिक कहेगा तो मुनाफिक का फतवा लौटेगा, मुशरिक कहेगा मुशरिक का फतवा लौटेगा। अब सूरह हज आयत नंबर 73-74 खोलिए, मैं दिखाता हूँ, इब्ने कसीर ने यही बात लिखी है जो मैं बता रहा हूँ। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 175 से 177 खोलिए। बिला वतलू अलैहि नबाल लज़ी आतैनाहू, इसकी तफसीर में उन्होंने लिखा है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ मैं हवाले के साथ कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं नहीं पेश कर रहा हूँ। आप सब छोड़ो, सिर्फ बाद में हमारी एक छोड़िए बात यार, मैं बता रहा हूँ कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने हदीस नकल की है कि एक जमात होगी जो खूब इबादत गुजार होगी, ठीक है, और खूब इबादत गुजार होगी, यहाँ तक कि वो इस्लाम का चादर ओढ़ लेगी और वो अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा, फिर वो उस चादर को पसे पुस्त डाल देगा और अपने पड़ोसियों को कहेगा तुम मुशरिक है। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क का हकदार कौन होगा, जो कह रहा होगा वो या जिसको कहा जा रहा होगा वो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कह रहा होगा वो खुद मुशरिक होगा। तो इससे आपने ये साबित कर दिया कि ये जो आप लोगों को जो मुशरिक कहेगा वो खुद मुशरिक है। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो हदीस आप ही लोगों के लिए है, इसकी क्या दलील? नहीं नहीं, हम इसकी यही दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी, बुखारी शरीफ। उम्मत शिरक नहीं करेगी ना? हाँ, तो आप उम्मत में हैं, हम भी उम्मत में हैं, ये कौन हाँ, तय तो करेगा? हम मुशरिक नहीं है ना, लेकिन तो हम फिर भी मुशरिक उसके कहाँ से? बावजूद भी आप लोग मुशरिक कहते हैं नहीं कहते हैं? अभी आपने खुद ही एक बात कही क्या? कि हम लोग अंबिया औलिया से मदद मांगते हैं। हाँ, तो इस बात की बिना पर अगर आपको कोई मुशरिक कहता है तो वो अपने पास दलाइल भी रखता होगा। और रह गया, आपके पास सुनिए, दलील है? आप पूरी बात सुनिए। रह गया मेरा मामला, तो मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए, आप कुरान के बाद असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह बुखारी शरीफ को मानते हैं? हाँ। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात है, कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब है उम्मत मुस्लिमा की। ये तो मानते हैं आप नहीं मानते? क्या उसमें लिखा है? आप उसको मानते हैं? पहले ये तो बताएं। मानते क्यों नहीं है? बिल्कुल बेशक। हाँ बिल्कुल मानते हैं, मानना पड़ेगा, अगर आप मुसलमान हैं तो। हाँ बोलिए। जिल्द नंबर 2 बुखारी शरीफ, जिल्द सानी, हाँ, सफ़ा नंबर 1098, हदीस नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ, इस वक्त जहन से निकल गया। जी बोलिए। हदीस पढ़ के, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत मन हद्दसक अन्नहु यालमुल गैब फ़क़द कज़िबा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो आदमी तुमसे ये गुफ्तगू करे, ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, फ़क़द कज़िबा, यकीनन उसने झूठ बोला। और आप धड़ल्ले से कहते हैं और हम लोगों से लड़ते हैं इस बात पर। अब आप बताओ, वो हजरत आयशा सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए। आप अभी मदद मांगने की दलील आपने भाग गए वहां से, अब इल्मे गैब पर आ गए। आप ये बताएं कि आप लोग इसी तरह बंदर की तरह ये क्यों मारते हैं, गुलाटियां क्यों खाते हैं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर? आप मदद मांगने, इसका भी जवाब मैं दे दूंगा, जो आपने अभी कहा इसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी शिर्क और आप मुसलमान नहीं है बात उस पर हो रही थी, आप इल्मे गैब पर आ गए भाग के। आप साबित कीजिए कि अंबिया औलिया से मदद मांगना शिर्क है, पहले उसको क्लियर कीजिए। चलो मैं मान लेता हूँ, आप साबित कर दीजिए कि अंबिया और औलिया से मदद मांगना शिर्क नहीं। अब सुनो, हाँ, कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह तहरीम की आयत है, फ़इन्नल्लाहु हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन बअदा ज़ालिका ज़हीर। दूसरी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ महबूब, वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब, और इस तरह दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, मुझे जहाँ दाखिल कर सच्चाई के साथ दाखिल कर, और जहाँ से निकाल वहाँ सच्चाई के साथ निकाल, और अपने यहाँ से एक मददगार अता फरमा, एक कुव्वत अता फरमा जो मददगार हो। यानी गैरुल्लाह वो होगा, अल्लाह की तरफ से एक मददगार मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? ये नहीं कहा जा रहा अल्लाह ताला तू मेरी मदद कर, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि तू एक कुव्वत दे दे कि जो वो मेरी मदद करे। तो जो अल्लाह ताला अता करेगा वो गैरुल्लाह रहेगा या नहीं रहेगा?
وہ مددگار. آپ ہمیں اتنا اور چاہیے بتا آیت دیجیے. میں پڑھوں؟ دیکھو آپ نے جو یہ کہا ہے ہم لوگ اس کو معلوم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پکار ما فوق الاسباب، یعنی ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے. کہاں لکھا ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں، آپ اپنی کا ہم بات کہنا بتا. تو ہمارے لیے نہیں کافی ہے نا، ہمارے لیے نہیں حدیث کافی ہے. قرآن اور ائمہ کا اقوال لائیے. ہم وہی بتانے جا رہے ہیں آپ کو آگے. ہاں بتائیے. اب آپ ذرا ایک کام کیجئے، آپ پہلے یہ بتا دیجئے کہ ہم کہتے ہیں پکار ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا. آپ اس سے متفق نہیں ہیں اب یا سنیے، ہے؟ پہلے ہاں نہ کر دیجئے پھر ہم آگے سنو بتائیں. یار، ہاں ہم اولیاء انبیاء کو پکارتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں انتقال کے بعد میں نہیں پکار سکتے، تو یہ اصول آپ کو کس نے بتایا؟ ارے انتقال کی بات کہاں سے؟ ہم نے جو آپ سے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ اتنا بتا دو یہ عقیدہ یہ عقیدہ ہمارا کہاں ہے لکھا ہے؟ مجھے بتائیں گے. ارے یار یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا دیوبندیوں ہوں. کا عقیدہ تو قرآن اور حدیث ان کا عقیدہ تھوڑی ہے، ان کا تو اپنے یہ مولوی کا عقیدہ ہے نا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ عقیدہ آپ کی نظروں میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کوئی جیسے کہ ہم لوگ اولیاء انبیاء سے مدد مانگتے ہیں، آپ اللہ سے مدد مانگنے پر چلے آئے. ہم ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے، اس کو چھوڑ دیے، وہاں علم غیب پر بھاگ گئے، ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ سے چھوڑا نہیں ہے بھائی. اولیاء انبیاء کی بات کیجئے یہاں کلیئر کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے آپ کے نزدیک. پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں، جب ہم نے کلیہ بیان کر دیا تو جزیات میں کیوں جا رہے ہو آپ؟ ہم نے کہہ دیا اسباب سے ہٹ کے سوائے اللہ کے کسی اور کو پکار نہیں سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کہہ دو کہ یہ غلط ہے تو ہم آگے بات شروع کریں پھر، یا کہہ دو صحیح ہے تو پھر ہم آگے. اور ہمارے سوال کا کیا ہوا؟ کون سا سوال؟ ہمارے سوال کا کیا ہوا؟ آپ بھی کہہ دیجئے کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، پھر ہم بھی آگے بات کرتے ہیں نا. ارے ہم یہ کیوں کہہ دیں جائز ہے؟ ہم نے کہا نا کہ ہمارا اس پر دلیل دے دیں. پھر وہی بات ہم یہ مانتے ہیں. دلیل دیتے ہی نہیں ہیں. ارے دلیل کیا، اب آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو. جو جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس بھائی دو ہاں یا نا. اور اسباب یہ کس نے گڑھا؟ یہ گڑھا نہیں، اسباب سے ہٹ کے اگر آپ کسی کو پکاریں گے. کس نے گڑھا؟ یہ گڑھا اس میں کیا بات بھائی؟ ارے کس نے لکھا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اسباب سے ہٹ کر یہ کیا کس نے لکھا؟ یہ پہلی بات. اللہ کو پکارا جائے گا تو بغیر اسباب کے، اور اس کے علاوہ کسی سے بھی مدد لیتے ہیں تو وہ سبب آ جاتا ہے بیچ میں، اور سبب سے مدد لینے میں تو کوئی منع نہیں کرتا. ما فوق الاسباب ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کہہ دو یہ غلط ہے، پھر بات آگے کرتے ہیں. اللہ کو پکارنا، سنو یار، اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کو پکار، اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے، ہم اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی عطا سے اولیاء کو بھی پکارنا شرک نہیں ہے. اللہ کی عطا سے اولیاء کو پکارنا شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہم لوگ پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا اس کی دلیل ہمیں دے دیجیے. اس کی دلیل یہی ہے، ہاں کیا ہے بتائیے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں. مددگار کون کون ہے؟ ہاں اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور نیک صالح مومن ہیں. نیک صالح کا ذکر کہاں ہے اس میں؟ تو کیا ہے؟ آپ ترجمہ کرو، پھر سے آیت پڑھو، ترجمہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ اور رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے، اور ایمان والے. تو وہی تو ہم نے بھی کہا. ہاں ٹھیک. تو ایمان والے نا، آپ ایمان والے ہو یا نہیں؟ ہم ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر ہم آپ کو پکارنا شروع کر دیں. اسی لیے تو ہم نے کہا مومن. سنیے، آپ ہمیں ہنسنے والی بات نہیں ہے. جو ولی ہے، سنیے، قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں، اس میں کئی کیٹیگریاں ہیں. جیسے میں بتا رہا ہوں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں نا. اس میں کئی کیٹیگریاں ہیں. جیسے مومن جو ہے
इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली नहीं मगर जो साहिब तकवा है। तो जो कामिल मोमिन है उस आयत में जो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, उससे मुराद वो कामिल मोमिन है। हम नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन कामिल मोमिन एक अलग है और आम मोमिन एक अलग है। तो उसमें जो कहा गया उसमें खास किया गया जो कामिल मोमिन है, जो औलिया हैं। तो जो कामिल मोमिनीन है, हाँ, जो औलिया हैं उनको मददगार बनाने का हुक्म है, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इसके बारे में जिक्र है कुरान में कि उनको मददगार बनाओ। वो हमारे मददगार हैं कई मामलों में, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब आपने कैसे निकाल लिया कि अगर वो हमारे सामने मौजूद नहीं तो जैसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मांगते हैं, ऐसे उनसे भी बगैर सबब के हम मांगना शुरू कर दें? इसका हुक्म थोड़ी दिया गया है। क्यों नहीं दिया? और मामलात में वो हमारे मददगार हैं। कहाँ लिखा है इंतकाल के बाद में नहीं मदद मांग सकते? इंतकाल के बाद में मदद मांग सकते हैं, ये सामने ना हो, सामने नहीं मांग सकते तो कुरान की आयतें भरी पड़ी, देखो आप सुनो। नहीं मांग सकते, पढ़िए आप, कुरान से ही सिर्फ आयतें सुन लो आप। हाँ सुनाइए ना। पारा नंबर 29 सूरह जिन, आयत नंबर 20, कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा। ठीक है, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं तो अपने रब को ही पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। बिल्कुल, वहाँ शरीक का इनकार है। पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून, अब इसको क्लियर कर लें, आयत नंबर 117, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन। देखो उसको आयत को क्लियर नहीं किया, चलो कर दो, पहले क्लियर कीजिए। उसमें शरीक कहा, तो हम लोग भी किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं। तुम लोग अल्फाज के जुमले बदल बदल के लोगों को बहुत शरीक करना और है, जोड़ना और है। अच्छा, हाँ, जैसे अल्लाह ताला अपने महबूब को जोड़ता भी है अपने साथ में, मगर शरीक नहीं, जोड़ने का हुक्म दिया, और शरीक करने का अलग ये है, उसकी ममानियत है। ये जोड़ना और शरीक करना कहाँ से लाए हो आप यार? ये बारीकी कौन समझेगा? ये कौन समझेगा कि आप जोड़ रहे हो कि शरीक कर रहे हो? चालू रखो। जैसे कुरान में कहा अल्लाह ताला ने कि ऐ महबूब, ये जो तुमसे बैत कर रहे हैं ये हकीकत में अल्लाह से बैत कर रहे हैं, और इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के हाथ को अपना हाथ बता रहा है, वहाँ जोड़ रहा है अल्लाह ताला, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। समझ गए? तो उसमें अल्लाह ताला ने जोड़ा है, तो जोड़ना शरीक करना नहीं है। शरीक मतलब समझते हैं पार्टनर। यहाँ लफ्ज शरीक बाद में है, अदउ पहले, पुकारना लफ्ज पहले। आप कह दे मैं तो अपने रब को ही पुकारता हूँ, के मामले में पुकारना वहाँ कहा जा रहा है। पढ़िए आयत फिर से। हाँ पढ़िए, कुल इन्नमा अदउ रब्बी। हाँ, आप कह दीजिए कि बेशक मैं अपने रब को ही पुकारता हूँ, वला उश्रिकु बिही अहदा, और मैं शरीक नहीं करता हूँ किसी और को, किसी और को उसके साथ शरीक नहीं करता। हाँ, तो वही तो शरीक हम लोग भी नहीं कर रहे हैं ना। शरीक करने का मतलब ही यही पुकारना। कहाँ लिखा है भाई? ये एक ही आयत है, अदउ इला रब्बी। बहन छोड़िए, पुकारना शरीक करना हो जाता है। कहाँ लिखा है ये? उसूल किसने बताया? अगर आप बगैर असबाब के पुकारते हैं जिस तरह अल्लाह को, उसी तरह गैरुल्लाह को, तो फिर वो शिर्क नहीं और क्या? सुन लीजिए, एक बात बताता हूँ। हाँ, आपकी पूरी देवबंदियत हो और वहाबियत, आज तक शिर्क की कितनी किस्में हैं उसकी तारीफ कुरान से वो आयत आज तक नहीं बताई है, जब से दुनिया बनी है, और क़यामत तक नहीं बताएगी। शिर्क की कितनी किस्में हैं वो भले ना बता पाई हो आपके बकौल, हालांकि शिर्क किसे कहते हैं? अब सुनो, बताया है लेकिन आपके बकौल न बताया हो, लेकिन शिर्क की जितनी किस्में हैं वो आप में सब पूरी तरह सोच के भरी हुई है। सुनो यार, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है कुरान से, मैं तफसीर से मैं साबित करता हूँ। ठीक है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने साथ जोड़ने का हुक्म दिया है, शरीक करने का नहीं। इनकार करता है? इसका कौन इनकार करता है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता हूँ। तो शरीक किसको कहते हैं मालूम है? शिर्क की 3 किस्में हैं। शरीक उसको कहते हैं कि इबादत करना, किसी को अल्लाह की तरह किसी की इबादत करना, और दूसरा ये है कि अल्लाह का बेटा बेटी समझना, तीसरा पार्टनर समझना। पार्टनर समझना, बस यही शिर्क है, यही 3 शिर्क है कुरान में, इसी 3 शिर्क का जिक्र है, चौथा कोई नहीं है। जोड़ना शिर्क नहीं है। जैसे इन्नल लज़ीना यक्तुब है,
रुकिए मैं आयत निकाल कर पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो फर्क करते हैं वो काफिर हैं। आप फर्क कर रहे हैं, आप काफिर हैं। अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जो आप फर्क कर रहे हैं ना, वो आप इस बिना पर काफिर हैं। किया भाई, यहाँ कौन फर्क कर रहा है? फिर अल्लाह से मदद मांग रहे हैं हम और नबी से मदद मांग रहे हैं, आप फर्क कर रहे हैं, इसमें तो काफिर नहीं है आप। मैंने फर्क कब किया? तो फिर अल्लाह के वजह से मदद मांगना साबित है, कह दीजिए जायज है। मैं ऐसे कैसे कह दूं जब कुरान की आयत मना कर रही है? आप फर्क भी नहीं कर रहे हैं। कुरान की आयत किसको मना कर रही है? शिर्क करने से, शरीक करने से मना कर रही है, ना कि औलिया से मदद मांगने को गलत कह रही है। आप खुल करके पढ़ लीजिए, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही। जो कोई खुदा के साथ किसी और अल्लाह को पुकारे, किसी और माबूद को पुकारे, उसके पास उसकी कोई दलील नहीं। हाँ, तो उसका हिसाब उसके परवरदिगार। हाँ बिल्कुल, तो मैं भी इसको शिर्क मानता हूँ कि अगर बातिल किसी बदमज़हब को या किसी ठाकुर वगैरह को बातिल माबूदों को पुकारेगा तो वो शिर्क ही है। हम तो माबूद समझ कर पुकारते ही नहीं है किसी को, खुदा समझकर किसी को पुकारते। इतनी देर में घूम फिर के आप उसी बात पर आ गए, समझ वाली। कुरान जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ। हम ऐसा समझ कर नहीं, जब वहाँ कहा जाता है कि को मदद के लिए पुकारते हैं। आप आयत पढ़िए जिसमें औलिया अंबिया को पुकारना शिर्क कहा गया हो। कितनी आयतें मैं आपको सुनाऊं? एक भी आयत का फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़िबीन, इसका क्या मतलब है बताओ? चालू रखो फोन। लो अब हम फोन चल। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़िबीन, और आप अल्लाह के सिवा किसी और को मत पुकारिए वरना आप भी पकड़ में आ जाएंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उम्मत को कहा जा रहा है, और पुकारने से यहाँ मुराद इबादत करना है। इब्ने कसीर की तफसीर आप खोलिए। अच्छा, पुकारने से मुराद यहाँ पर इबादत करना। आप कौन वाला पुकारते हो हमें भी बता दो। आप कौन वाला पुकारना नहीं, चलो यहाँ आपने कह दिया यहाँ इबादत है। बिल्कुल इबादत है। आप कौन वाला पुकारना पुकारते हो वो बताओ हमें। हम लोग मदद के लिए पुकारते हैं, जैसे अपने माँ बाप को भी मदद के लिए पुकारते हैं। मदद? अच्छा, बगैर असबाब के मदद के लिए पुकारना इबादत नहीं है? नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है? या अल्लाह हम तेरी इबादत करें तो तुझसे ही मदद चाहें। अच्छा, ये इबादत नहीं है? इबादत है। कभी करो इबादत नहीं, कभी करो इबादत। हम इबादत समझ कर नहीं पुकारते हैं यार। फिर तुम्हारी समझ पे हम क्या तुम्हारे सर में घुस जाएंगे? तुम क्या समझ के कर रहे हो? हम तो जाहिर पे हुक्म लगाएंगे, तुम आगे वही समझ वाली बात पे। सुनो एक बात और सुन लो। हाँ बताओ। तारीफ करना अल्लाह की इबादत है। हाँ, लेकिन माँ बाप की तारीफ करना क्या है? नहीं, तो इबादत नहीं है माँ बाप की। नहीं, इबादत नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से अगर अल्लाह से मदद मांगेंगे खुदा समझकर तो इबादत है, लेकिन अंबिया उलिया से मदद तलब करेंगे तो इबादत नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन तुम जब वली की बात आती है तो उसको इबादत में ले लेते हो, और जब खुदा समझ के तलब नहीं करोगे, क्या समझ के करोगे? हमें आज अपनी समझ बता दो यार। अल्लाह से समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर इनाम नाजिल किया, इनको ताकत दी है कि ये हमारी मदद कर सकें। इनको ये पावर दिया है कि जैसे अल्लाह की मदद करता है वैसे ये भी कर सकते हैं। वैसे नहीं करते हैं, अल्लाह की अता से करते हैं। हंस रहे हो? दलील ही नहीं। लोग यार नहीं सुधरोगे यार। एक आयत पढ़ो कि औलिया अंबिया से मदद लेना शिर्क, कहाँ लिखा है? अरे भाई आप जो है फिर हम